अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9 केमिस्ट्री टीचर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ एंड दिस इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4 व्हिच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हम पढ़ चुके हैं हमारा टॉपिक 4.3 व्हिच वाज अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सो अब सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक और इसके साथ साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 और देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज व्हाई सोडियम form a chemical bond with chlorine. We know that sodium can make chemical bond with other elements as well, but specifically here we need to give the reason why it will form a chemical bond with chlorine. So for that purpose we need to give reasons. Now sodium forms chemical bond with chlorine because you will always start your answer with opening line. Sodium has only one electron in its valence shell or the outermost shell, and it has tendency to lose one electron, while chlorine has 7 electrons in its outermost shell because it belongs to group 17, and it has tendency to gain one electron, and this favors the transfer of electron from sodium to chlorine to form chemical bond. अब एक और reason भी है, which is sodium is electropositive in nature. You know, sodium is present in group 1A and sodium is electropositive. मतलब उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है एंड इट इज एट हाई एनर्जी स्टेट। लेकिन अगर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज एट लो एनर्जी स्टेट, एंड ड्यू टू दिस एनर्जी स्टेट डिफरेंस it will favor the formation of chemical bond between sodium and chlorine. अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, which is why does sodium lose an electron and attain +1 charge? इसका आंसर भी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस किया है. You know that sodium is electropositive in nature and it easily loses its valence electron to attain the noble gas-like configuration and the nearby noble gas configuration. And the noble gas which is present at the last of this period, which is period number 3, the sodium period, it is neon, जिसके total number of electrons हैं 10. So sodium try करती है कि उसकी electronic configuration neon की electronic configuration जैसी हो जाए, so it will lose its electron and it will become a positive ion. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, which is how do atoms follow octet rule? मतलब इनबिल्ट नेचुरली सारे के सारे एटम्स के पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. सो यू नीड टू जस्टिफाई ओवर हियर कि हाउ दे आर गोइंग टू फॉलो ऑक्टेट रूल. सो as we have discussed this in detail in our topic 4.1 as well, that atoms follow octet rule to achieve stability. And why do they need to achieve stability? Because they need to attain electronic configuration of the nearby noble gas. So atoms follow octet rule in 3 ways. 3 ही तरीके हैं. By giving electrons, and you need to mention as well that what are the conditions for giving electrons. If electrons are less than 3, then the particular atom is going to donate its electron. So हम कहेंगे कि first condition is by giving electrons. और ऑफ कोर्स चूंकि वो एटम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को ही देगा, आपको या मुझे तो नहीं दे सकता. सेकेंड रीजन इज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसके लिए भी देयर इज अ कंडीशन. यस, द वैलेंस शेल मस्ट हैव 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर 5 या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके तो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा. और द थर्ड ऑप्शन इज sharing electron with other atoms, and you can see that in this point we have not mentioned whether it is mutual sharing or is sharing by one atom. So इसमें covalent bond भी आ सकता है और coordinate covalent bond भी, which is not needed to be mentioned over here. अब चलते हैं हमारे next question की तरफ, which is which electrons are involved in chemical bonding. अब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, या फिर हम इन्हें शेल कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं. सो उन सारे शेल्स में से
डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे. So only the valence shell electrons, which are the outermost shell electrons, they are involved in chemical bonding. And particularly those electrons which are going to make bond with them, they are called as bonding electrons. यानी कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मगर सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बन सकता है. द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग. एंड हियर आई वांट टू रिमाइंड यू दैट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, they are important because they provide shielding effect. They are the reason of shielding effect, but they are not involved in bonding at all. Chemical bond is made between the electrons present in the valence shell. Next question is, why does group 1 elements prefer to combine with group 17 elements? इसके लिए भी आपको एक दफा रिव्यू करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 इसी लेक्चर का. ग्रुप 1 मतलब they are having 1 electron in their outermost shell, and group 17 मतलब they are having 7 electrons in their outermost shell. तो अगर हम इनकी नीड्स की बात करें to attain stability, to get 8 electrons in their outermost shell, to follow octet rule, तो वो सिमिलर बनता है. जी हाँ, सो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स they are highly electropositive with low ionization energy, thus they have tendency to lose electron and become positive ions very easily. And on the other hand, group number 17 elements, they are highly electronegative and with high ionization energies. And that's why they have tendency to gain electrons easily and become negative ion. So therefore, group 1 elements, they prefer to combine with group 17 to form ions. And both of them, they are going to develop ionic bond. Why ionic bond? Because ions are formed and there will be electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions. Next question is, why chlorine can accept only 1 electron? Chlorine सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों कर सकती है? So to answer this question, you must recall first what is the atomic number for chlorine, and then what is the electronic configuration of chlorine. अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 17. अब करना यह है कि आप उसको अरेंज कर लें. यू कैन डू इट इन योर माइंड एज वेल कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. सो 2, 8 एंड देन 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में आए 7 इलेक्ट्रॉन्स. और एवरी एटम नीड्स टू फॉलो ऑक्टेट रूल टू अटेन स्टेबिलिटी. सो क्लोरीन को भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं. सो 7 आर ऑलरेडी प्रेजेंट. सो मजीद कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है? ऑफ कोर्स ओनली 1. सो वी कैन से दैट क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल and it requires only 1 electron to complete its valence shell to gain electronic configuration of the noble gas, nearby noble gas. और कौन सी noble gas है जो कि क्लोरीन के पीरियड में आती है? It is argon, जिसका अटोमिक नंबर है 18. सो क्लोरीन का अटोमिक नंबर 17, क्लोरीन में है 17 इलेक्ट्रॉन्स और आर्गोन में है 18. तो अगर क्लोरीन को अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन जैसी करनी है तो it needs to accept only 1 electron. That's why chlorine accepts only 1 electron. Next and the last question for this test yourself is, why and how elements are arranged in a period. एक पीरियड के अंदर which is side to side in a periodic table, जब हम मूव करते हैं left to right तो उस रो को हम पीरियड कहते हैं. उसमें why and how elements are arranged. So in the period, elements are arranged according to their atomic numbers. और कैसे अरेंज होते हैं? They are arranged in increasing order of atomic number, and the atomic number increases by 1. और एक से ज़्यादा पीरियड इसलिए हैं क्योंकि there is periodicity in the properties of elements, and elements of the same property, they will be in the same group. So after some particular elements, after a specific interval, those properties are going to be repeated. So that's why we have more than 1 period as well.
सो ये थे हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योर सेल्फ नंबर 1। अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ नंबर 4.2 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। Students, as you have discussed electronic configuration in chapter number 2 in detail, so जब भी आपको पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी, so you have to mention it with reference to shell and subshell both. So इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस चीज़ का एटॉमिक नंबर। जी हाँ, उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर अगर पता होगा तो ही हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को उसके शेल्स में शो कर सकेंगे। So if we talk about carbon, so carbon का atomic number है 6. And if we look at the distribution of electrons in the shells, जो के हैं K और L, तो वो आते हैं 2 electrons in K shell and 4 electrons in L shell. और अगर देखें electronic configuration in subshells, तो it would be 1s2, 2s2, 2p2. Next question is, what type of elements have tendency of sharing the electron? मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि शेयरिंग की कैपेसिटी रखते हैं। शेयरिंग की बात हो रही है तो फौरन ही माइंड जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 वो करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आखिर इसकी रीजन क्या है? फर्स्ट आपको रीजन डेवलप करनी होगी एंड देन यू विल गिव एग्जांपल। So the non-metallic elements, non-metals with comparable electronegativities, they have tendency of sharing electrons. क्योंकि non-metals की जो tendency है to gain electron वो almost similar होती है और उनकी electronegativity में जो difference है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि ionic bond बने। So उस सूरत में covalent bond वजूद में आएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17 दे यूजुअली हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव नॉट यूज्ड वर्ड मस्ट ओवर हियर, इट्स यूजुअली, मतलब इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि शेयरिंग कर सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हाइड्रोजन है विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1, मगर फिर भी वो शेयरिंग करती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज if repulsive forces dominate to attractive forces, will a covalent bond form? मतलब अगर repulsive forces जो कि सेम चार्जेस के बीच में होती हैं वो ओवरकम करेंगी, वो डोमिनेट करेंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस को, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? सो इसके लिए हमें फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे हमने पढ़ा था कि बॉन्ड सिर्फ तभी बनता है व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस they overcome the repulsive forces. So we can say that if repulsive forces dominate the attractive forces, covalent bond will not be formed. And the reason is because increase in the energy will happen over there. And due to the increase in energy, there will be no bond formation, because the bond formation takes place when the attractive forces dominate rather than repulsive forces. क्योंकि repulsive forces increase होने से उससे तो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और बॉन्ड बनने के लिए एटम्स को जुड़े रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी कि बात हो रही है नाइट्रोजन की, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आखिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड इट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2, 2s2, 2p3, यानी कि लास्ट वाले शेल में हमारे पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपको p सब शेल में नजर आ रहे हैं। दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम and these unpaired electrons are involved in bond formation. Nitrogen atom will form 3 covalent bonds with other nitrogen atom. इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी। और आप जानते हैं कि जब
3 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे तो हम उसे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, बिकॉज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4.1 एंड फर्स्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4.2, और ये सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू टॉपिक 4.1, 4.2 एंड 4.3, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। हम अपने आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।